Dear students, myself Vijay Pratap Singh, and today we are going to start our new book and new syllabus of the class 12. Means today is the first day of this chapter, so that's why we are going to start it from introduction. So dear students, it should be very important. Please, you have to give concentration more and more in this topic. With the help of that, you can able to achieve good marks. With the help of that, Indian economic development. This is the subject, means book name I have written here in front of you. Indian economic development is a very important book and syllabus of the class 12th. And one more thing, Indian economic development topic is a very important part for your life. You want to achieve any examination, you have to revise it. You have to go in any section, UPSC, IAS, anywhere, you have to learn these all things. This is a very important part. This is the history of India, about Indian economics, about Indian development. Each and every rules and regulations are given here in front of you. With the help of that, you can able to achieve your target with the help of this information and with the help of these all subjects. So now we are going to start Indian economic development, and chapter is Indian economy on the eve of independence. Now today we will discuss about each and every information what we can get Indian economy on the eve of independence. So dear students, it should be very important part for your syllabus. Means Indian economy means only for India. What is given inside in the Indian economy, that one we have to read. But dear students, we know very well 16 August 1947 is a very important date. You know very well. This date, each and every student know very well who is the belong from India, who is the belong from Indian nation. Why they know it very well? Because it is a very important part. With the help of that, you can able to achieve your target and should be very important. With the help of that, you can able to achieve your target. Please come to the desk quickly. So once again, congratulations. Indian economy and date I 15 August 1947. 15 August 1947, you know very well why. On that day, India got freedom. What? India got freedom on 15 August 1947. These all things we are going to read here in this Indian economy. Before independence, after independence, both things we are going to discuss inside in that book. It should be very important part. This is the important part for your syllabus. That's why dear students we have discussed. Wait a second. Dear students, 15 August 1947, you know very well. It should be very important part of Indian history. Everyone know about it very well. Who is related with that Indian economy? हमारे भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से जो भी जुड़ा है वो इसके बारे में जानता है. इसके बारे में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था. अब हम भारत के आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद के सारे कंडीशंस को पढ़ेंगे इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. With the help of that, we can able to read these all things, and it should be a very important part of our Indian economy. So dear students, now we
we are going to start our topic, Indian economy on the eve of independence. The structure of Indian present day. What structure we are getting on the present day? That you are getting with the help of history. Particularly in the period of India were under British rule. You know very well. Before 16 August 1947, we are under the British rule. Okay? On that time, British is going to be rule on our India. उस समय ब्रिटिश हमारे देश पे राज करते थे और हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा था। क्यों? तो ब्रिटिश चाहता ही नहीं था कि हमारा देश डेवलप हो। Because one powerful country will never be in that condition. कोई भी पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश किसी का गुलाम नहीं करेगा या कोई पावरफुल इंसान किसी दूसरे की गुलामी को महसूस नहीं करेगा। This is the important part. That's why they are working for that. India will never get a more power, don't get economic development, otherwise they will fight and demand freedom. That's why British are never working for the development of Indian economy. But we had gotten independence on 1947. After that we are working for Indian economy. Okay? So just we have to start from our topic from here. Now we have come state of Indian economy on the eve of independence. State of Indian economy on the eve of independence we have to discuss now here. The sole proprietors of the British control rule in India was reduce the country to be used the range of marginal support with the help of Great British more rapidly expanding modern industrial base. With the help of that, we are leaving these all things. With the help of that, these are conditions we are facing. It should be very important part. One more thing, as understanding on the exposite nature of the relationship with the help of administration department we are getting. You know very well, this is the important part of our Indian economy. This is the part of education. Wait a second. Wait a second. अब पानी पी ले कोई बात नहीं. Now listen you all once again. We are discussing lower level of economic development under the colonial rule. अब यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश में क्या रूल्स और रेगुलेशन थे, क्या समस्याएं थी। ब्रिटिश हमारे इस हमें डेवलप होने ही नहीं देना चाहता था, जिससे हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। So once again you have to know the topic, lower level of economic development under the colonial rule. On that time when British are ruling on it, जब ब्रिटिश हम पे शासन करते थे, उस समय हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी? बहुत नीचे, lower level. Our level is very low. With the help of that, our economic development is very less. With the help of that, we can able to know these all things. Okay? Once again listen. जब ब्रिटिश हम पे शासन करते थे, तो उस समय हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत नीचे था। क्यों था? क्योंकि अंग्रेज हमें शक्तिशाली बनने देना ही नहीं चाहते थे। क्यों? अगर हम शक्तिशाली बनेंगे तो किसी की गुलामी को महसूस नहीं करेंगे, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। That's why our economic development is very low, क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे पास आने ही नहीं देना चाहते थे। Because he is the sole proprietorship
मतलब पूरे देश पे पूरा एक छत्र राज्य किसका था? अंग्रेजों का। अब बिफोर दैट advent the British rule, okay, advent of British rule, second one during the British rule। अब हम देखेंगे लोअर लेवल हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो कंडीशन बताया गया ब्रिटिश रूल के दौरान, बिफोर पहले और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दोनों समय के दौरान आपको बताया जाएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर colonial rule। First one is that before the advent of British rule, and second one is that during the British rule। Two important topics are given in front of you। इन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे बताया गया पहला आपको बिफोर, the listening before India has the independence, economic before advent the British rule, through agriculture were main source of livelihood for most peoples। हमारे देश में भारत जब आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद या पहले, दोनों समय हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी एग्रीकल्चर। क्या थी? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस समय 80% लोग कहाँ रहते थे? गांव में। कहाँ रहते थे? गांव में। और 75% लोग क्या करते थे? कृषि, किसान थे। तो हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? एग्रीकल्चर, ओके। एट द कंट्री इकोनॉमिक्स कैरेक्टर इज द वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। India was then particularly like known as the handicraft industries in the field of cotton and silk and textile। दूसरा था भारत और मजबूत था कब? अंग्रेजों के आने से पहले। मतलब किसान कौन थे? खेती करते थे, लेकिन हमारे यहाँ लोग शिल्प कला में ध्यान देते थे। हमारे यहाँ के लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा कलाएं थी। कला मीन्स गुण। हम शिल्प कला के माहिर थे। कपड़े बुनने की क्वालिटी हमारे पास थी, धागा बनाने की, कपड़ा सिलने, बुनने, काटने है, लॉट्स ऑफ स्किल वी नो वेरी वेल ऑन दैट। हमें अनेक प्रकार की स्किल्स की जानकारी थी जिसकी सहायता से हम डेवलप होते थे। लेकिन ये सारी चीजें भी बाद में थी और धीरे धीरे खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये रूल था इसका, अंग्रेजों का। अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारत डेवलप हो, इसलिए अभी आपको थोड़ी सी और कहानी सुनाई जाएगी कि कैसे ब्रिटिश ने हमारे यहाँ इन सबको खत्म करने का प्रयास किया। एग्रीकल्चर इतना खराब कर दिया कि लोग किसान अनाज उत्पादन नहीं कर पाते थे। जूट, कॉटन, टेक्सटाइल सारी कंपनियों को बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कच्चा सामान खरीद के ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ से सामान यहाँ लाते थे और सस्ते दाम पे बेचते थे, और हमारे यहाँ के सामान महंगे होते थे और भारी होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ मशीनों की कमी थी। यहाँ जो कपड़ा हम हाथ से बनाते थे उसमें सिल्क कला होता था, कढ़ाई होती थी, बुनाई होती थी, और वो कपड़ा भारी हो जाता था और महंगा पड़ता था। और ये लोग सिंथेटिक क्लॉथ बनाते थे केमिकल और मशीन की सहायता से, और ये कपड़ा बाजार में सस्ता बेचते थे। जैसे कि इनके सामानों की डिमांड बाजार में खूब बढ़ जाए, इस वजह से हमारे सामानों को कोई पूछता ही नहीं था, तो हमारी लेवल क्या हो गई? इकोनॉमिक लेवल खराब हो गई। हमारी कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। क्यों? क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ गया। हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं था, कोई कंपनियां नहीं थी, और जो कंपनियां थी उसके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं थी। और लेटेस्ट मशीनरी हम लाते तो कहाँ से? फॉरेन से। और फॉरेन से लेटेस्ट मशीनरी अंग्रेज लाने ही नहीं देती थी। इसलिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा था? बेकार, खराब। नथिंग इज देयर। A lot of problems we are facing in that rule of British one। जब अंग्रेजों का शासन हम पे था तो अनेक प्रकार की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती थी। We can say
products enjoyed worldwide market based reproduction of fine quantity of material stands crafting से and import from India। जब अंग्रेज हमारे पास नहीं थे, जब हम इनके गुलाम नहीं थे, तो हमारे सामान अच्छे दामों पे विदेशों में भी बेचे जाते थे। अपने देश में तो हम उसे बेचते ही थे, लेकिन विदेशों में भी हमारी पकड़ अच्छी थी। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले मैंने क्या कहा, हमारे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। 80% लोग गांव में रहते थे, 75% लोग कृषि करते थे और अच्छा से अच्छा अनाज उगाते थे। बाकी लोग जो ऐसे थे वो बिजनेस करते थे, जैसे सिल्क कला हो गया, कढ़ाई बुनाई का काम करते थे। दूसरा, वो जो सामान बनाते थे बहुत अच्छे हेल्दी सुंदर होता था और विदेशों में बेचा जाता था। तो ये हो गया ब्रिटिश रूल आने से पहले। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गई तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ व्यापार अच्छा हो, यहाँ के व्यापार को खराब करेगा, बेकार करेगा, अपने सामान को यहाँ बेचेगा। इसलिए अंग्रेज की अलग रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी थी। क्या वो पॉलिसी थी? अब यहाँ पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश हैड केम इन इंडिया, दे हैड डेवलप्ड देयर ओन इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश जब भारत में आए तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं यहाँ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान, लेकिन हमेशा से ब्रिटिश रूल तो था नहीं, पहले ये जानते हैं ब्रिटिश रूल शुरू कब हो गया और ब्रिटिश लोग हमारे देश में अपना पैर फैला कैसे लिए। सबसे पहले आप ध्यान देंगे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश के लोग हमारे देश में आए हैं। कब? इन 16th सेंचुरी, 1600 में। 1608 में उन्होंने यहाँ पर बिजनेस करना प्रारंभ किया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में ही सब कुछ बताया जाएगा। उन्होंने यहाँ 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद किया, मतलब 1947 तक यहाँ थे। अब कब? 1600 से। इस बीच को क्या कहेंगे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। 1608 ईस्वी में जब ब्रिटिश के लोग हमारे देश में आए तो उनका एक ही मोटिव था, बिजनेस, ना कि देश पे राज करना। वो ये सोच के नहीं आए थे कि मैं इन्हें गुलाम बना लूंगा, वो बस बिजनेस पर्पस के लिए हमारे देश में आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमें वो गुलाम बना लेंगे। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। 1608 ईस्वी में अंग्रेज हमारे देश में आए। उन समय उन्होंने अपने पूरे भारत में 2 गोदाम बनाया। गोदाम मीन्स गोडाउन। वहाँ वो कच्चा सामान खरीदते थे, स्टोर करते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड से जो सामान बंदरगाह पे आता था वो गोदाम में रखा जाता था और पूरे भारत में बेचा जाता था। ओनली हिज ओन पर्पस इज अ बिजनेस, नॉन एनी अदर थिंग। व्यवसाय ही उनका मुख्य उद्देश्य था। और जब वो भारत में 1608 ईस्वी में आए तो 2 जगह पे उन्होंने क्या बनाया? अपना गोदाम। पहला गोदाम उन्होंने सूरत में बनाया और दूसरा लुधियाना। दोनों एक बगल बगल के लोग हैं, सूरत और लुधियाना कोई दूर नहीं है, एक ही जगह होते हैं। तो ऐसे ही जगहों पे उन्होंने अपना गोदाम बनाया। तीसरा महाराष्ट्र में बनाया। तो 3 जगह गोदाम उन्होंने बनाया और अपने देश को रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। ऐसा कब तक चला? 1757 तक, मतलब 157 साल उन्होंने ऐसा ही किया और फिर भी उनको ऐसा नहीं था कि हम भारत पे राज करेंगे। इतना 1600 में आया, 1757 तक व्यापार किया, मतलब 157 साल, 157 ईयर्स। इतने दिनों में भी उन्हें ये नहीं था कि मैं यहाँ राज करूंगा। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई कि उनके सामान कहाँ से आ रहे थे? समुद्री जहाजों से। तो समुद्री जहाजों से जब सामान आता है तो समुद्री लुटेरे भी होते हैं, तो सामान लूट लेते थे। इनके सामान को लूटने की कोशिश की गई तो इन्होंने क्या किया? उनके पास कमांडो पुलिस होती थी, अपनी खुद की सिक्योरिटी, बंदूक ये डेवलप थे और उन्होंने फाइट किया और उन लोगों को हराया और अपने सामान को सुरक्षित भारत में लाए। तो इससे ये फेमस होने लगे।
तब से ये गार्ड रखने लगे। धीरे धीरे ऐसे इनकी प्रोसेस बढ़ती गई और लोग इनसे सिक्योरिटी लेते गए और ये धीरे धीरे अपना पकड़ बनाते गए। और आज क्या हो गया था, आज नहीं मीन्स 1947 से पहले ये भारत पे राज करना शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसी बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम कहानी बताएंगे तो पूरा वीडियो पूरा लेक्चर कहानी में चला जाएगा और 450 साल की कहानी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ओके, सो नाउ कम ऑन द टॉपिक आफ्टर दैट। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको बता दिया गया द पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द कंट्री टू सप्लायर टू रॉ मटेरियल टू कंज्यूम फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन टू पीपल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में हमने यही देखा कि सामान इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से आता था, रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ भेज देते थे। A lot of rules and regulations we are facing, a lot of problems we are facing between these all things. So nowadays students, in front of the next topic is given agriculture sector on the eve of independence. Okay, अब एग्रीकल्चर सेक्टर को जान लेते हैं कि कृषि वाली हमारी प्रावधान कृषि एरिया कैसा था कब। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के दौरान या उसके आगे की सिर्फ हम मान लेते हैं कि हमारे देश में कृषि का क्या स्थान था, कृषि सेक्टर कैसे चल रही थी, उसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे देश में सबको पता है, अभी मैंने यहाँ लिखा था 80% जनसंख्या गांव में रहती थी और 75% लोग खेती करते थे। तो हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती। लेकिन स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा देश डेवलप हो और खूब अनाज उगाए। क्यों? क्योंकि अनाज उगाएगा तो किसान भूखा नहीं रहेगा, पावरफुल हो जाएगा। और पावरफुल इंसान कभी भी किसी से डरता नहीं है, गुलाम नहीं होता है। और भूखा इंसान हमेशा गुलाम हो सकता है। एक वक्त की रोटी पाएगा और एक द्वार पर बैठा रहेगा, नौकरी करेगा और डरेगा भी। अंग्रेज क्या चाहते थे? यहाँ के लोगों को गरीब बनाना, डराना, यहाँ के लोग पावरफुल ना बने, डरे हमसे और हमारे गुलाम लाइफ टाइम बने रहे। ठीक है, अब आपको बताया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फीचर। इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव रिटन 4 features. Before these all 4 features, we have to discuss few lines. Indian economy under the British rule, colonial rule, okay, we maintain fundamentally agree. We can say about 85% of the country population live in the villages. I have written here 80, but now we can say 85%. 80 प्लस भी था। 85% लोग हमारे देश के कहाँ रहते थे? गांव देहातों में, विलेज। ओके, दे हैव टू देयर ओन ऑक्यूपेशन। जो गांव में लोग रहते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कृषि करना। और हमारे देश में 85% लोग गांव में उस समय रहते थे। कब? ब्रिटिश रूल के दौरान। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था अभी ये आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत खराब थी, बिकॉज जस्ट आई टोल्ड बिफोर अ मिनट दे डोंट वांट टू डेवलप देयर फार्मर्स। If farmers will develop, they will make a lot of rules and regulations and they will face a problem. तो अंग्रेज उसे डेवलप होने ही नहीं देना चाहते थे। ये है मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो नाउ टॉपिक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लो प्रोडक्टिविटी। Okay, so dear students, now we will discuss low productivity in next video because this video's length is going to increase. Okay, just wait a second. Once again, new video will upload within 5 minutes. When you will get tomorrow the same video, you will get from agriculture sector on the eve of independence. So now, dear students, thank you all for listening my lecture. Subscribe my channel and share this video to others, your friends also. And next chapter I will start from same introduction from agriculture sector on the eve of
From this feature we have to start. Okay, thank you all. Thank you.